A very good and blissful morning to dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. In the economics 13th lecture, today we are going to start our fourth chapter of microeconomics, that is consumers equilibrium indifference curve analysis. In this chapter, what we are going to discuss, that is the assumptions of indifference curve, of consumer equilibrium, meaning of indifference set, meaning of indifference curve, thereafter features or properties of indifference curve, thereafter consumer's budget, and the last one optimum choice of consumer, that is the consumer equilibrium. These are the points of this chapter that we are going to discuss in the further lectures. Let us start about the chapter. The very first topic, indifference curve analysis as different from the utility analysis. Just recall students, dear students, in the previous lecture we have completed our third chapter, that was about the consumers equilibrium with the utility analysis. So this is the topic that is telling about the utility analysis is different from the indifference analysis. See over here, previously we have discussed about consumers equilibrium with utility approach, according to which we can measure the satisfaction और यूटिलिटी derived from the consumption of goods and services. Previous जो चैप्टर था हमारा बेटा वो इस assumptions पे था that whatever the satisfaction we are getting we can measure it. But if we talk about today's chapter, that the indifference curve analysis of consumers equilibrium discards utility approach. ये जो चैप्टर है, ये जो अप्रोच है वो हमारी जो कार्डिनल अप्रोच है उससे क्या कर देती है, डिस्कार्ड करती है. इंस्टेड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच. ये जो चैप्टर किस पे डिपेंड करता है बेटा, ऑर्डिनल अप्रोच पे, अकॉर्डिंग टू विच द यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम उसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं हाई और लो. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द assumptions of indifference curve analysis equilibrium, है ना. अगर हम assumptions की बात करें, see the very first assumption, money income of consumer is given and does not change. That means in the simple words we can say whatever the amount of income is there, that is given previously and that amount does not change. See the second one, the consumer spends his income on such goods which can be substituted for each other. Initially understand the meaning of substituted for each other, that means can be used in place of each other. For example, ball pen and gel pen can be substituted, can be used in place of each other. In place of blue ball pen you can write down from the blue gel pen. ठीक है. सो द कंज्यूमर इज यूजिंग सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड. देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, लाइक टू फ्रूट्स हैव बीन टेकन, एप्पल एंड ऑरेंजेस. थर्ड अजम्पशन, द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स is well defined. ये load नहीं बेटा, it is well. Whatever the preferences of the consumer are there in reference of the two goods, that is completely well defined in advance. Next, more of a good always gives more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preference for a good. इसने ये बताया कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर गुड की मिलेंगी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा. दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, है ना. जनरली हम लोग देखते हैं कि कम प्राइस में ज़्यादा सामान मिल जाए. So sometimes or most of the time we also focus simultaneously on the quantity of the good that we are getting after paying a certain price. So this is the monotonic preference. Higher the quantity of good, higher will be the amount of satisfaction. And the last one, the consumer is rational and always try to maximize his satisfaction. जो consumer है वो rational है, that means mindful है और हमेशा efforts करता है कि जो उसका satisfaction है वो क्या हो सके, maximize हो सके, increase हो सके. Now the next topic, that is indifference set. What is indifference set? See over here, it is a set of those कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, है ना. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करता है किसके, टू गुड्स के, विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल द कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंट सेट. तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा. अब what is different and what is indifferent? For example, I am just in front of you, I am presenting a washing machine and I am presenting a television, TV. In that you can discriminate between both of them. This is television and this is washing machine. But what happens if I will present the same model TV in front of you?
है ना, एकदम सेम टीवी, ए सेम मॉडल सेम प्राइस, बी सेम मॉडल सेम प्राइस सेम कंपनी। इन दिस कंडीशन यू विल बी इनडिफरेंट, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे फर्स्ट टीवी में और सेकंड टीवी में, बट इन द प्रीवियस कंडीशन यू कैन मेक डिफ्रेंशिएशन कि ये वॉशिंग मशीन और ये क्या है, टीवी है, एंड आई वांट दिस। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, तो वहाँ पे आप इनडिफरेंट होंगे। तो इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस कॉम्बिनेशंस में या फिर सामने वाली कमोडिटी में नहीं दिखता है, ठीक है। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिफरेंट सेट। आप एक इमेज देखेंगे, इसमें एक टेबल है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ एप्पल्स, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कॉम्बिनेशन ए इज टेलिंग दैट कंज्यूमर विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 10 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, whatever the satisfaction will be availed at combination A will be equal to the combination B, will be equal to the combination C and will be equal to the combination D। सब में अगर सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलेगा तो उस कंडीशन में कंज्यूमर क्या होगा, इनडिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको चिंता तब होती है जब सेटिस्फेक्शन कहीं पे अलग अलग होगा। हेयर इफ़ वी टॉक, सो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट इज़ द इक्वल, ठीक है। तो ये इसने आपको किसका एग्जांपल दे रखा है, इनडिफरेंस सेट का। सो वी कैन सिंपली से इनडिफरेंस सेट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड द इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द consumer. Now after indifference set, come to the next topic, that is the indifference curve. What is indifference curve? In the very simple language I can explain you about the indifference curve, that is the diagrammatic presentation of indifference set, that is known as indifference curve. जब हम लोग इंडिफरेंस सेट को डायग्राम के फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। एंड यू कैन सी ओवर हेयर द इंडिफरेंस कर्व एज वेल। ये आपका शेड्यूल से कॉम्बिनेशन लिया है ए बी सी डी, और ये आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपको वो कर्व में उसने प्रेजेंट कर दिया ए बी सी डी। सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। Now the next and the last topic of this lecture, that is the features or properties of indifference curve. So there are a lot of properties of indifference curve, जिससे हमें जो indifference curve का concept है वो और crystal clear हो जाएगा। Next one, indifference curve। अच्छा, one more thing बेटा, indifference curve is also known as IC. In the short form it is known as IC. So the very first feature, that is IC slopes downward. If we talk about the indifference curve IC, तो ये हमेशा क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। यहाँ पे देखिए बेटे, अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो उसके क्या हो रहा है, ए के बाद फिर नीचे आया बी, फिर और नीचे सी, फिर और नीचे डी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आगे देखेंगे, it means that IC has a negative slope, and whosoever diagram comes downward it represent the negative slope, और अगर कोई भी डायग्राम की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, it will represent the positive relation. So as it is coming downward, that is why it is representing the negative slope. Now coming to the second one, IC is convex to the point of origin. The shape of PPC is the convex to the point of origin. It means that the slope of IC tends to decline as we move along the IC from left to right. इसका मतलब ये कि जब हम लोग IC में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे क्या आते हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड, ए बी सी डी हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट आ रहे हैं। द स्लोप ऑफ IC इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसका एक सिनोनिम भी है, उसको हम लोगों ने एक टर्म दी है, दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एंड इट इज़ नोन एज MRS। किससे जानते हैं बेटा हम इसको, M स्टैंड फॉर मार्जिनल, R स्टैंड फॉर रेट एंड S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन। आगे देखते हैं बेटा, दिस रेट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अदर। ये वो रेट रिप्रेजेंट करता है जिसपे कंज्यूमर एक कमोडिटी को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए दूसरी कमोडिटी को क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो गेन और सेक्रीफाइस का जो रेशियो है, दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। आगे देखें बेटा, MRS का इसने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज़ चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। द डायग्राम इज़ ऑल्सो हेयर बेटा, और उस डायग्राम के साइड में आप एक शेड्यूल भी देखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग हमेशा बात करें किसकी, MRS की, तो आप देखोगे कि MRS की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्लाइन होती है, ठीक है। MRS की वैल्यू नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम लोग देख लेते हैं, एक X कमोडिटी Y कमोडिटी है और उसका MRS निकाला है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, और हम MRS की वैल्यू देखें तो
first cannot be determined, that is why it is dash, thereafter minus 1.5, minus 0.75, minus 0.25. The value of MRS is continuously decreasing, and that is why the indifference curve is always convex to the ओरिजिन, है ना. ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ पे डायग्राम में ओ लिखा होता है, जीरो लिखा होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जहाँ से हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड. हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वन थिंग, जस्ट लिसन ओवर हियर बेटा, कि जब हम लोग एक डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाते हैं तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैप. सो व्हेन वी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल डायग्राम, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप. वो क्या होगा? इंडिफरेंस मैप. तो यहाँ पे इसने जो पॉइंट बताया कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो जितना हायर होगा, आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल भी हाई होगा. अगर हम लोग यहाँ पे देखें डायग्राम में, हेयर इज IC1 एंड IC2. So in this IC2 will provide the more amount of satisfaction in comparison to the IC1. अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पे IC में 2 पॉइंट्स लिए, एक R पॉइंट लिया और एक S पॉइंट लिया. इफ़ वी सी अबाउट द R पॉइंट, तो हमें Y गुड मिलता है OK और X गुड मिलता है OL. बट इफ मूव टू द S पॉइंट इन IC2, तो गुड Y तो सेम रहा, बट Y के कंपैरिजन में जो X था वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया. एंड हायर द यूनिट will be providing the higher amount of satisfaction as per the concept of monotonic preference. ठीक है, तो जितना higher आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा. अगर मैं इसी मैप में, इसी कर्व में एक और IC3 बना दूं जो कि IC2 से अबव हो, तो ओबियसली IC3 में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू IC1 एंड IC2. नेक्स्ट वी आर कमिंग, IC डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को ना क्रॉस करते हैं ना ही इंटरसेक्ट करते हैं. व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज एवरी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड द सेम सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी अटेन बाय द अनदर सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एंड दैट इज़ वाई जब वो दोनों चीज़ें दैट मीन्स जब दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होगा तो ओबियसली ना वो कभी एक दूसरे को टच करेंगे और ना ही कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, whatever the satisfaction you are getting from the consumption of apple and oranges, the same level of satisfaction you cannot get when you will consume the coke and the thumbs up. है ना, एक मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया एप्पल और ऑरेंज का, एक कॉम्बिनेशन लिया कोक और थम्स अप का. दोनों से मिलने वाले दोनों इंडिफरेंस कर्व के सेटिस्फेक्शन क्या होंगे? अलग अलग होंगे. एंड दैट इज़ वाई दे विल नॉट बी एबल टू टच और इंटरसेक्ट ईच अदर्स इंडिफरेंस कर्व. दैट मीन्स ये जो डायग्राम है जो यहाँ पे है, वो ऐसा डायग्राम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा. कौन सा? जिसमें कि IC1 ने IC2 को क्या करा है? इंटरसेक्ट किया है. नेक्स्ट इन द लास्ट वी आर कमिंग, IC डज नॉट टच X और Y एक्सिस. अच्छा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एक अजम्पशन होता है, एंड द अजम्पशन इज दैट देयर मस्ट बी कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स. है ना, इट इज़ कंपल्सरी कि कंज्यूमर को 2 गुड्स को कंज्यूम करना ही करना है. सो इफ़ द कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग 2 गुड्स, ओबियसली तो ना वो Y एक्सिस को टच कर पाएगा और ना ही X एक्सिस को टच करेगा. इफ़ अ पर्टिकुलर डायग्राम और IC टचेज Y एक्सिस, है ना, Y एक्सिस को टच करता है, दैट मीन्स दैट द कंजम्पशन ऑफ X गुड इज़ ज़ीरो. X का कंजम्पशन कितना हो गया? ज़ीरो. एंड एज सुन एज द कंजम्पशन ऑफ X विल बी ज़ीरो, तो यहाँ पे आपने इंडिफरेंस कर्व के जो अजम्पशन है उसे ब्रेक कर दिया और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो वहीं पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाउ द इंडिफरेंस कर्व इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी अप्रोच. देयर आफ्टर व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज़ इंडिफरेंस सेट, what is indifference curve, and last but not the least, features of indifference curve. That's all about today. Thank you very much. God bless you all.